Hello students, this is the second part of the chapter 2, component of food. We have already studied the 3 major nutrients and we performed the test also. Test for carbohydrates in the form of starch or sugar, test for protein and test for fat. We have already studied about the sources of all these 3 nutrients. So now the next one is the vitamins and minerals. So why our body need vitamins? Vitamin help in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. There are different kinds of vitamins which are known by different names. Some of these are vitamin A, C, D, vitamin E and K, and there is also a group of vitamins called vitamin B complex. ठीक, तो vitamins हमें क्यों essential होते हैं body के लिए? Because they help in protecting our body against the diseases, and they also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. इनको लेने से हमारे आइज, टीथ, बोन्स, गम्स बहुत हेल्दी होते हैं. हमारे हेयर्स, हमारे नेल, ये सब हेल्दी रहते हैं. और ये बहुत डिफरेंट टाइम्स में होते हैं, मतलब विटामिन ई, ए, सी, डी, ई, के एंड बी. सो आवर बॉडी नीड्स ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन इन अ स्मॉल क्वांटिटी. बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में हमें ये सारे विटामिन्स ज़रूरी होते हैं हमारी मील में, हमारी बॉडी के लिए. किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा हो जाना, इफ़ वी आर टेकिंग टू मच विटामिन और टू लेस विटामिन, बोथ कॉजेज deficiency or diseases to our body. Okay, so vitamin A. So what vitamin A do? Vitamin keeps our skin and eyes healthy. Okay, skin, our hair, our nails, they become healthy if vitamin A we are taking. Vitamin C, it helps body to fight against many diseases. Vitamin C की हेल्प से हम हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीजेज होती हैं उनसे वो फाइट करता है. ठीक है. Vitamin D, what is the role of vitamin D in our body? It helps our body to use calcium for bones and teeth. हमारी bones को, हमारे teeth को जो calcium मिलता है वो vitamin D के through मिलता है. Okay, and what is the another source of vitamin D? Sunlight. Okay, our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. Sunlight is another source or the main source for our body to take vitamin D. If we are exposing less to the sunlight, we are not taking sunlight in sufficient amount, so our body will be deficient of vitamin D. Okay. So what are the sources of these vitamins? So first, what are the sources of vitamin A? क्या क्या sources हैं, हमें कहाँ से vitamin A हमारी body को मिलता है? फ्रूट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलते हैं, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़ हो गए, स्वीट पोटैटो एंड कैरेट, मैंगो, ये सारे सोर्सेज हैं आपके विटामिन्स के. सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, वीट, राइस, लिवर, मीट. सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला. मेनली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उससे हमें विटामिन सी हमारी बॉडी को मिलता है. सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, अगेन मिल्क से मिलता ही है. जो भी आपके ये जितने भी फिश हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग हैं, इन सब से हमें विटामिन डी हमारी बॉडी को मिलता है. ओके, सो नाउ minerals. What are the minerals and why they are essential for the body? Of course, they are also essential for our body for the proper growth of the body. Okay, so it is needed for our body in small amount. Each one is essential for the proper growth of body and to maintain a good health. Most food items usually have one or more than one nutrient. In a given raw material, one particular nutrient may be present in larger quantity than in others. हो सकता है जो कि जिस भी फूड में आपने टेस्ट कंडक्ट किया होंगे, आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अदर देन न्यूट्रिएंट. सो राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. ओके, न्यूट्रिएंट्स के अलावा विटामिन्स, और ये मिनरल्स के अलावा भी हमारी बॉडी को
चाहिए होता है, हमारी बॉडी की नीड होती है, वो होते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. They both are essential for our body. So what are these dietary fibers? Dietary fibers क्या होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो dietary fibers are also known as roughage. It is mainly provided by the plant products of food. Okay, whole grains, pulses, potatoes, fresh fruits, vegetables. They are the main sources of dietary fibers. They does not provide any nutrient to our body, but they are the essential component of our food, and they help us to get rid of undigested food. ठीक है? And now the water. Water helps our body to absorb nutrients from food. जो पानी की हमें क्यों, हमारी बॉडी में पानी की क्यों इम्पोर्टेंस होती है, क्यों हमें चाहिए होता है पानी. पानी हम और यूजुअली हम वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में लेते हैं, हमें फ्रूट्स के थ्रू भी मिलता है, कुछ वेजिटेबल्स के फॉर्म में मिलता है, एंड जो भी हम कुकड फूड खाते हैं, जो भी हम खाना बनाते हैं, उसमें भी हम पानी डालते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है. इट इज़ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी. It also helps in throwing out waste products from our body in the form of urine and sweat. We get most of the water that our body needs from the liquids we drink, जैसे कि पानी, milk, चाय, दूध. We add water to most cooked foods. Okay. So now we have also seen that if we cut a tomato or a potato or any vegetable or any fruits, we observe that there is a water in our hand. It means that the vegetables and the fruits, they all have water. If we consume it, we will get, our body get a water in a sufficient amount. ठीक है? Food materials themselves contain water, and the vegetables themselves contain water. So here we complete with the vitamins and dietary fibers. There are some sources of minerals. We will get minerals in the form of iodine, phosphorus, iron and calcium. What are the sources of iodine? Ginger, green leafy vegetable, fish. Sources of phosphorus, milk products, banana, grains. Iron, green leafy vegetable again, fruits. And calcium, we have already studied milk and the egg, milk products. From all these sources, our body receive minerals. ठीक? And they all needed by our body in a very small quantity. What is balanced diet? Our next topic is balanced diet. So balanced diet is the diet which contain a good amount of roughage or the dietary fibers and water. Diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. Such a diet is called a balanced diet. हम अपनी डेली लाइफ में नॉर्मली जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है. वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गुड हेल्थ. हम जो भी डाइट लें उसमें प्रॉपर और राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जब ये सब एक अच्छे अमाउंट में हमारी मील में, हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं और हम उसे कंज्यूम करते हैं, तो वो इस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ये सब कुछ मिल रहा है विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी. ओके. पल्सेस, ग्राउंडनट, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, अंकुरित चने, मूंग दाल, ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स कौन से होते हैं, जैसे कि इडली वगैरह, ये फर्मेंट करके बनाए जाते हैं. एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, आटे का जो अपन 2-4 आटे को मिक्स करके रोटियां बनाते हैं, जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, जो कि दाल और पल्सेस से बनाई जाती हैं, तो सीरियल्स पल्सेस से बनती हैं, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, and the available vegetables and other such food provide many nutrients to our body. Okay, eating the right kind of food is not enough. It should be cooked properly so that its nutrients are not lost. If the vegetables and the fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. सही तरीके का खाना खाना ही इनफ नहीं होता है.
हमें कभी कभी रॉ फूड को हम उसको पका के भी खाते हैं, हम हर फूड को कच्चा नहीं खाते हैं, एंड उसको पकाते समय हम कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा हम कोई भी कुकिंग करने के पहले या वेजिटेबल बनाने के पहले हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को वॉश ऑफ करते हैं, बट इफ उसको वॉश करने के बाद हम उसको कट करते हैं, उसको पील करते हैं, इसमें भी it will result in the loss of some vitamins. Many vegetables and fruit skin contains vitamins and minerals. बहुत से fruits और vegetables की जो skin होती है जिसको हम पील करते हैं खाने के पहले, उसमें vitamins और minerals रहते हैं, वो भी चले जाते हैं, ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। एंड चावल को पकाने के पहले बिफोर cooking the rice we used to wash it with the water. If we do repeated washing of rice and pulse it may remove some vitamins and minerals present in them. We all know that cooking improves the taste of food, makes it easier to digest. कोई भी रॉ मटेरियल को जब हम पका के खाते हैं तो उससे उसका जो टेस्ट होता है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, वो अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी होता है, एंड वो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। बट कुकिंग से ये भी होता है, आपका टेस्टी तो बन रहा है खाना, बट कहीं ना कहीं जब उसको हम ओवर कुक कर देते हैं तो उस कुछ न्यूट्रिएंट्स जो उसके होते हैं वो इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर ऑल्सो लॉस्ट इफ द एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. And also, Bujo thought that fat would be the best food to eat. Bujo, again, इसका एक डाउट है कि जब भी हमारा जो फैट होता है ना वो सबसे अच्छा खाना होता है, मतलब आप फैट भर ले लो आपकी पूरी डाइट कंप्लीट हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप सिर्फ फैट कंज्यूम कर रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, आप प्रोटीन नहीं ले रहे, इससे भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है इन सारी चीज़ों की, एंड एक ही चीज़ को लेने की वजह से आप बीमार भी पड़ जाते हो। जैसे आप ज़्यादा फैट लोगे, फैट इन द फॉर्म ऑफ मतलब आप फ्राइड फूड ले रहे हो, समोसा, कचौड़ी, पूरी, आप बस यही खा रहे हो, अपना कार्बोहाइड्रेट ले रहे, ना प्रोटीन ले रहे, ना वाइटामिन मिनरल्स ले रहे, आप कुछ भी नहीं ले रहे, आपको क्या होगा, ये हार्मफुल होगा आपके खाने के लिए। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं या उसकी क्वांटिटी को हम कम कर देते हैं तो वो दोनों केसेस में क्या होता है, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन लाइक ओबेसिटी। मतलब हम ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी मतलब क्या होता है, मोटापा, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी होना। अब कमी किस चीज़ की होगी हमारी बॉडी में? Deficiency that occur due to the lack of nutrients over a long period of time, and deficiency of one or more nutrient can cause diseases or disorders in our body, ठीक है। डेफिशिएंसी एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में डेफिशिएंट होना, उनकी कमी से हमें डिजीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 दिन, काफ़ी लंबे समय से आप किसी न्यूट्रिएंट को स्किप कर रहे हो, आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, आप अपनी मील डाइट में नहीं ले रहे हो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से, तो उससे आपको उस चीज़ की, उस वाइटामिन, उस न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है। ओके, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन, वो भी फॉर अ लॉन्ग टाइम, what will cause stunted growth, swelling face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. Okay, and if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person will become lean, thin and weak and will not be able to move properly. ठीक है, अगर कोई है बच्चे जो कि प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, एग नहीं ले रहे हैं, मिल्क नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ रुकेगी। उनकी ग्रोथ कैसी होगी? स्टंटेड ग्रोथ, चेहरे में स्वेलिंग आ जाएगी, उनके बालों का कलर चेंज होने लगेगा, उनको स्किन डिजीजेज होने लगेंगी तरह तरह की, उनको डायरिया हो जाएगा। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों नहीं ले रहे हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट पर्सन विल बिकम वेरी वीक, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, वो लीन, थिन और बहुत ही कमज़ोर सा रहेगा, वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा एंड मे नॉट बी एबल टू स्टडी प्रॉपरली। ओके, सो
हमारी बॉडी में हर चीज़ का एक राइट क्वांटिटी और प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी हैव टू टेक अ प्रॉपर न्यूट्रिशियस एंड अ बैलेंस डाइट. ठीक है. नाउ देयर इज अ चार्ट ऑफ अ डिजीज एंड डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. सो विच डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय विटामिन ए. विटामिन ए किस चीज़ में हेल्प करता है? अगर हम कंज्यूम करेंगे विटामिन ए, तो विटामिन ए कीप्स अ स्किन, आई, नेल, हेयर हेल्दी. ठीक है. इनसे हमारी ये सब चीज़ अच्छी हेल्दी होती हैं. अगर आपने विटामिन ए नहीं लिया है तो इट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विजन. व्हाट आर द सिम्टम्स? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स देयर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. Vitamin B1, berry. What are the symptoms? Weak muscles. You feel very little energy to do any work. Vitamin C deficiency causes scurvy. What are the symptoms of it? Bleeding gums. आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होएगी जब आप ब्रश करोगे. Wound takes longer time to heal. आपको कभी कभी चोट लग गई और तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो आपका काफ़ी स्लो हो जाएगा. Vitamin D causes rickets. Bones become very soft and bent. जो विटामिन डी जब हम लेते हैं तो उससे हमारे क्या होता है, जो कैल्शियम हमें मिलता है विटामिन डी से, उससे हमारी बोन्स हेल्दी होती हैं, हमारे टीथ हेल्दी होते हैं. बट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग विटामिन डी, सो इट विल cause rickets. On what are the symptoms? Your bones become very soft and they will bend. Calcium, bone and tooth decay. Again, weak bones हो जाएंगी और आपके दांत सड़ने लगेंगे, tooth decay. Iodine, it is a mineral. What is the deficiency? It causes goiter. आपने देखा होगा swollen neck होती है गले में. आपका जो गला होता है ना वो पूरा ऐसे स्वेल कर जाता है आयोडीन की कमी से. आयोडीन आपको सॉल्ट फॉर्म में मिलता है. ठीक है. ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर swollen and there is a mental disability in children. मतलब आपके खाने में नमक का होना भी बहुत ज़रूरी है. आपको आयोडीन लेना है जिससे आपको गोइटर ना हो. ठीक है. आयरन causes anemia and there is a weakness also in our body. ठीक है. कमज़ोरी महसूस होती है, अनीमिया, आपकी खून की कमी हो जाती है. आपको आयरन रिच फूड्स भी खाने चाहिए. ओके. सो वी हैव टू टेक केयर of our body. We have to take nutritious diet. We have to take a balanced proper diet. Okay. We have to take vitamins, we have to take minerals, so our body growth is healthy and it will maintain a good health. Okay. The major nutrients, now the summary of the chapter. The major nutrients in our food are carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals. In addition, it also contains dietary fibers and water. ये हमारा फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट है कि इसकी समरी में हमने क्या पढ़ना है, मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं. तो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं इसके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स. इन एडिशन वी हैव स्टडीड द डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. Carbohydrate and fats mainly provide energy to our body. Proteins and minerals are needed for the growth and maintenance of our body. Vitamins, we also need vitamins. It helps in protecting our body against many diseases. Balanced diet, it provides all the nutrients that our body needs but in a right quantity along with the adequate amount of roughage or dietary fibers and water. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause deficiency diseases or disorders. Okay. So here we complete the chapter 2, component of food. We will meet again in the next video. Till then, bye bye.